So I would say that startup itself is a very uphill, challenging journey. इससे पहले मैंने दो तीन जॉब्स भी की हैं, लेकिन जॉब इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉल पाथ. हैव एन आइडिया जिसको कि आपने बहुत थॉरली टेस्ट करना है. You cannot be emotionally attached to your idea alone and something which may not make too much practical sense. Potential senior clients, they buy to what you're saying. Similarly, आपने team onboard करनी है. What you say, people should actually believe in you. People should trust you, and they should get along with you in your journey. Cost is a tiny fraction of the savings that you're doing. जब आप ग्रिड से एनर्जी कंज्यूम करते हैं, IPPs जो कि कोल या डीजल पे चल रहे हैं, जितना आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतना ही आप ग्रिड को स्ट्रेन करते हैं. आज के दौर में अभी रिसेंटली हमने देखा काफ़ी क्लाउड बर्स्ट के इश्यूज आए. आई थिंक पिछले 20-30 सालों के वर्स्ट तरीन जो है सैलाब आए और पाकिस्तान वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अफेक्टेड. लोगों का मौश ख़राब हुआ, पूरी लाइफ थी वो डिस्टर्ब हुई है इस चीज़ों से. अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, welcome to the 5th episode of the Work Zone podcast. One of the biggest expenses a business faces is actually the electricity cost, or it was the biggest expense that we were facing ourselves. So we tried to find some solutions for it, and we actually came across a product named Remac. The product itself was very good. What the product basically is कि वो जो आपके एयर कंडीशंस होते हैं उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है, hence resulting in lesser energy wastage. I really like the product. The product itself was very good, so I thought why not invite the startup in the first place और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में थोड़ा सा हमें बता सकें. So today I have with me Dr. Farooq Patti, the co-founder and CEO of Nuvative. Dr. Saab, thank you so much for joining us. Thank you Ali for having me. And Dr. Saab, I hope you're doing well. जी absolutely. थोड़ा सा काइंडली अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दें, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता दें. व्हाट एग्जैक्टली इज रीमैक, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस इट प्रोवाइड्स. राइट. तो आई एम electrical engineer by profession, so I did my PhD in wireless communication from University of Auckland back in 2013. और उसके बाद I came back to Pakistan and I joined academia. और यहाँ पर फिर जो एक टीचिंग और रिसर्च का काम होता है वो चीज़ शुरू हो गई. But very soon I realized that I wanted to do something more practical. So जो चीज़ें सीखी थी, we wanted to do it in a way so we could, create an impact into society, create economic value and address some, big problems. So I, along with my friend Dr. Moazzam Maqsood, we then founded Nuvative a few years back. और उसमें फिर we started working on the IoT, which was, an emerging area. So that's how this thing sort of started. Right. So वैसे तो जो Remac, the platform itself is a very specialized solution. So what made you of this idea कि यार यही product जो है बनाना चाहिए, और what exactly the product does और इसके क्या फायदे हैं to businesses? Right. So I'll just give you some background of how we actually reached here. हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था in healthcare. Healthcare में there are a lot of critical products like blood stock, vaccines, कि जिनको आपने बहुत ही स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस के अंदर मेंटेन करना होता है. तो उनके टेम्परेचर्स को मॉनिटर करना और उसके पेपर लॉग्स बनाना जो है वो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से मैंडेटरी होता है. तो उसमें चूँकि वो काम मैनुअली होता था तो उसमें बहुत से इश्यूज थे. तो हमने उसके लिए फिर एक IoT प्लेटफॉर्म बनाया विद द सेंसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर द टेम्परेचर्स ऑफ दीज क्रिटिकल लोकेशंस, और वो एक सॉफ्टवेयर पे विजिबल होता है. और अगर वो अपनी टेम्परेचर लिमिट्स एक्सीड करे तो एक्सकर्जन्स अगर हों तो वो अलर्ट्स भी आ जाते थे यूज़र को. सो इट्स वेरी एफिशिएंट सिस्टम. तो ये चीज़ हम हेल्थ केयर में लेके आए एंड वी गॉट सम वेरी गुड क्लाइंट्स ऑल्सो. बट ओवर टाइम वी रियलाइज के दिस वॉज रियली नॉट अ वेरी large enough market within Pakistan. Somehow the appetite for quality in our country is not too much. So उसके बाद we came across another problem where we were trying to pitch our previous solution to one of the food companies in Lahore. और उन्होंने कहा कि जी हमें एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वी गॉट डजन्स ऑफ बेकरी चेन्स इन द सिटी, और वहाँ पर हमारा जो स्टाफ है वो एयर कंडीशनर्स को बहुत ओवरकूल करता है. तो वी वांट टू हैव अ मैकेनिज्म वेयर वी एबल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल आवर AC यूनिट्स बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं. तो उसके बाद फिर वी क्रिएटेड an IoT product for this use case and did our initial pilot almost a year and a half ago. So that's kind of how it started. एक साल हो गया ऑलमोस्ट आपकी कंपनी का. हाउ वेल आर यू गाइस परफॉर्मिंग, नंबर्स कैसे आ रहे हैं? बीइंग अ स्टार्टअप, डू यू थिंक यू गाइस आर डूइंग वेल, और व्हाट आर योर एग्जैक्टली रिमार्क्स ऑन इट? Right. So I would say that startup itself is a very uphill, challenging journey. इससे पहले मैंने दो तीन जॉब्स भी की हैं, लेकिन जॉब इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉल पार्क.
तो startup you're trying to create an organization and you just have an idea जिसमें you want to of course onboard clients, लेकिन उसमें this cannot be done alone. You have to make a team, you have to probably onboard investors, you have to have an idea जिसको कि आपने बहुत thoroughly test करना है. You cannot be emotionally attached to your idea alone and something which may not make too much practical sense. Obviously. So what I've noticed is that in startup there are two main things that one has to do. One is that you have to sell trust. You have to communicate trust, which means that you're so passionate and also realistically grounded about your idea कि जब आप potential partners, potential investors से बात करें तो they buy into what you're saying. When you talk to potential senior clients, they buy to what you're saying. Similarly, आपने team onboard करनी है. What you say, people should actually believe in you. So ये एक बहुत important part है कि people should trust you and they should get along with you in your journey. One. जो दूसरी बड़ी important चीज़ है वो ये है कि आपने persevere करना होता है. Because there are going to be lots and lots of setbacks. It's perhaps the most difficult professional route that one can take. So you have to persevere a lot. और जितनी इस वक्त success stories हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि all of them they had their share of failures and setbacks. और अगर आप इस चीज़ को mentally और emotionally bear नहीं कर सकते तो probably one should not really get onto this path. So we've been in this game for like around 5 years or so. And we faced lots of setbacks. In fact, I would say that maybe more than 90% of the times you're always stuck into some situation, and there are few times when you're kind of rolling forward. But overall, I think in the past few years we've made substantial progress. We've had so much learning. एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वो ये है कि PhD की या डिग्रीज की. So that is called explicit knowledge gain. कि जो आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक कोडिफाइड तरीके से एक नॉलेज को गेन कर रहे हो तो. लेकिन जो नॉलेज और लर्निंग का जो एक दूसरा टियर है ना वो है टेसिट नॉलेज. और टेसिट नॉलेज ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से क्या चीज़ लर्न करते हो. और मेरे ख्याल में जो टेसिट नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है. आप जितनी मर्जी डिग्रीज एकेडमिक सेटिंग में कर लें लेकिन द रियल लाइफ इज़ वेरी रुथलेस एंड मोस्टली क्वाइट डिफरेंट. Unless you actually come out in the field and you actually experiment, I think the wholesome learning does not happen. So in the field of entrepreneurship या startup के अंदर I think जो दूसरा वाला part है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने experience किया है. And it's been a rough roller coaster ride, but it's been extremely valuable also. Right. Obviously आपकी expertise भी develop होती है. You learn new things with the passage of time और you groom mentally भी आप जो है वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं. तो being a startup founder अब कुछ main points हों जो आपने सीखे हों, कुछ ऐसे hurdles आए हों जो आप समझते हो कि यार मैंने सीखा इन पे काफ़ी जो turning points हों उसके बारे में थोड़ा सा audience को बताना चाहें तो. बिल्कुल. So I think उसमें जो सबसे important part है वो ये है कि जो भी आपका idea है it definitely makes sense to you. That's why you're actually picking it up as an idea. But you need to ground test that into real world environment in a very efficient way. So basically, a startup is a set of untested hypotheses जिसको आपने experimentally validate करना होता है. और वो validation होती है when you go out into the actual field. और उस काम को आपने efficiently करना है. उसका मतलब ये है कि you must carefully utilize your resources, your money and time and effort. और उसके बाद the experiment should be such कि you should be able to get quick user feedback fairly quickly so that you can iterate based on user feedback and then you can evolve your product whatever it is. And if you for example get to know okay this is not exactly what the end user wants, then you should be able to scrap it and then get into something which would work. So for example our first iteration with our RTMS real time temperature monitoring system in Pakistani healthcare हम लोग शायद ये सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ी मार्केट है. ठीक है. बट ऑफ कोर्स वी हैड फाइनाइट रिसोर्सेज और हमने ये देखना था कि उसके अंदर रहते हुए हम कहाँ तक इसको पुश कर सकते हैं. एंड ओवर टाइम वी रियलाइज कि दिस वाज नॉट अ वेरी बिग मार्केट एंड सो दैट वाज अफेक्टिंग आवर ग्रोथ एज वेल. So therefore then at one point we had to make a product pivot and then we chose another area which was like a much bigger pain point and problem, which was that
electricity wastage cost business a ton. ऐसे ही Now this is something which cannot be easily ignored. obviously yes. So that this is the finding which actually made us pivot into this direction. आपने थोड़ा सा जर्नी के बारे में शेयर किया. What do you think are some of the biggest lessons you've learned as a business or a startup? ये तो फाउंडर की थोड़ी सी चीज़ें होंगी कि यार आपने चीज़ें सीखी, बट एज अ बिजनेस व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न, स्पेशली लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपने मेंशन किया कि यार आप जब हेल्थ केयर सर्विसेज में आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, आपको रियलाइज़ हुआ कि इट वाजंट मच ऑफ अ बिग मार्केट. डू यू थिंक एसी सर्विसेज में कंपैरेटिवली बड़ी मार्केट है, और बिजनेसेस वैसे इटसेल्फ कैसे लेते हैं एज अ बिजनेस यू गाइस? राइट. So I would say कि ये हम लोग का ये जो प्रोडक्ट है Remac, in which we actually help businesses cut down their operational cost because of inefficient manual control of air conditioner usage. जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ऊपर चला जाता है, और ओवरऑल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसका तकरीबन 60-50% सिर्फ आपकी एयर कंडीशनिंग की वजह से आ रहा होता है. और एयर कंडीशनिंग को आमतौर पे आपका स्टाफ और मैनेजर्स यूज कर रहे होते हैं. नाउ दे डोंट हैव टू पे द बिल. So once your personal finance is not at stake, people just do it very generously. We all know that very well. ऐसे ही है. सो वी नोटिस कि इस चीज़ के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी और विजिबिलिटी नहीं थी. दूसरी तरफ हमने एक और जो चीज़ देखी वो ये कि दुनिया में जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली वेस्ट में, वहाँ पर एक सेंट्रल HVAC सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल कूलिंग कर रहा होता है. उसके पीछे एक BMS भी होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज करता है. सो वी नोटिस कि स्पेशली पाकिस्तान और ईस्टर्न मार्केट्स और इवन मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं. इनफैक्ट मोर देन 80% बिल्डिंग्स के जहाँ बिजनेसेस जो हैं वो इन छोटी क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं. अच्छा, अब इन छोटी बिल्डिंग्स में यू कैन नॉट हैव द बिगर HVAC और BMS. सो वी नोटिस दैट इट्स अ लार्ज सेगमेंट कि जहाँ पर सिर्फ आपने स्टैंड अलोन मैनुअल एयर कंडीशनिंग को ही इस्तेमाल हो रहा है, एंड देयर इज नो BMS लाइक फंक्शनैलिटी ओवर देयर. सो वी देन काइंड ऑफ रियलाइज के व्हाट इफ वी कुड मेक अ लाइट BMS, a cloud-based intelligent BMS service which could actually cater for this segment, which would be very low cost, which would be easy and feasible for these businesses to afford, and which would be tailored for our specific standalone air conditioning units. So this appeared to be a huge market, and it largely appeared to be untapped because there are few players who are doing very good work in this segment. So that's why we sort of got into this. And it's not been too long, maybe 12 months or so, and what we are experiencing is that it's a massive market. And inshallah we are hoping to take a good share out of this market, and I think we are doing pretty well in the initial stage. इंशाल्लाह. नहीं, आई थिंक द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी गुड. उसकी जो हमने वैसे प्रोडक्ट को एक्सटेंसिवली टेस्ट किया, उसको काफ़ी तरह की सिचुएशन से गुजारा ताकि हम देख सकेंगे प्रोडक्ट की इम्प्लीकेशंस क्या हैं. एंड वी केम टू रियलाइज टू द कंक्लूजन, स्पेशली आई वाज वेरी कन्विंस्ड ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि नो मैटर द टाइप ऑफ सिचुएशन हमने उसको प्रोडक्ट को पुट किया इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द टेम्परेचर्स ऑफ द AC, इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग. तो वी रियलाइज किया द प्रोडक्ट इटसेल्फ वाज वेरी गुड, नॉट ओनली एफिशिएंट बट ऑल्सो आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर जो मुझे पसंद आया, वो द बिगेस्ट फीचर जो मुझे पसंद आया वाज कि यार आपको एक रियल टाइम फीडबैक मिल रहा होता है कि AC कैसे काम कर रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, टेम्परेचर इटसेल्फ रूम का कितना है. थोड़ा सा फॉर द ऑडियंस अगर आप लेमैन टर्म्स में समझाना चाहें कि व्हाट एग्जैक्टली इज Remac और एग्जैक्टली काम कैसे करता है. जी, सो Remac स्टैंड्स फॉर रियल टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग एंड अप्लायंस कंट्रोल. टिपिकली हम लोग एयर कंडीशनर्स को यूज़ करते हैं बाय फीलिंग द टेम्परेचर एंड देन वी सेट इट थ्रू आवर रिमोट कंट्रोल. अब इसमें क्या होता है कि देयर इज नो एक्चुअल विजिबिलिटी इनटू कि किसने किस वक्त कौन सा एयर कंडीशनर ऑन किया और कितने पे उसको सेट कर दिया और कब ऑफ किया. सो व्हाट Remac does is that it's an IoT platform. There's a small intelligent device which gets fitted with every air conditioner. It has a few sensors attached to it, temperature, humidity, and also human presence sensor. ये कंटिन्यूसली आपकी कंडीशंस को मॉनिटर कर रहे हैं और ये सारा डेटा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा होता है. उसके बाद द सिस्टम इज ऑल्सो गेटिंग डेटा स्ट्रीम फ्रॉम अदर एंड्स. फॉर एग्जाम्पल इट नोज व्हाट इज द एक्सटर्नल वेदर, और उसकी मदद से देयर इज एन इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर which optimally controls the air conditioners. So, for example, ASHRAE, American Society for Heating and Refrigeration, recommends that the professional workplace temperature should be 25 or 26 in summers and winters. Now, if somebody sets it to 20 or 18, every 1 degree dip that you do from the optimal, it costs you 8% extra in the energy cost. So, if you go 5 degrees down, you're now actually overspending by almost 40%. Yeah, 40%. Right? So, Remac क्या करता है कि आपके एयर कंडीशनर्स को सही टेम्परेचर पे सेट कर रहा होता है. उसके बाद अगर किसी मीटिंग रूम में
people just walk off, the air conditioner after some time would automatically go into quiet mode, or it would just switch off because there's no human present. उसके बाद you also can punch in the working schedule, say 9 to 5 or whatever, and the system would automatically switch on and switch off during those timings. So just through these three things, the system is able to set optimum temperatures, preventing overcooling or overheating. It makes sure that it's not functioning while there's nobody present, and that it only allows the system to work in the allowed hours. तो इस चीज़ की मदद से we've been able to demonstrate 30 to 55% savings across multiple clients where we have deployed the system. राइट 30 to 55% सेविंग्स अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करना चाहें कि यार 1 लाख बिल आता था तो उसका बिल कितना आ रहा होगा, लेसे से बेयर एंड मिनिमम एंड पे जाते हैं कि यार सिंस द डिवाइस की एफिशिएंसी 30% है तो हम इस मिनिमम एंड पे जाते हैं 30% पे हाउ मच सेविंग डज अ पर्सन हैव और अ बिजनेस कैन हैव उसका अगर 1 लाख 1.5 लाख बिल आता है तो अगर आप एक टिपिकल 1 टन एसी की बात करें तो वो 1 घंटे में 1.5 यूनिट्स कंज्यूम करता है. ठीक है, तो अगर आप 5 डेज अ वीक भी काम कर रहे हैं और आप तकरीबन 22 दिन एक महीने में काम करते हैं तो एक एसी यूनिट जो है उस पर कितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, वन कैन फिगर दैट आउट. रफली इट कॉस्ट्स अराउंड से 15 to 20,000. दिस इज 1 टन. सिमिलरली अगर 2 टन है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, अराउंड 20,000, 4 टन है तो सो ऑन. तो अब आप देखिए अगर एक एसी का बिल तकरीबन 20,000 महाना आ रहा है और हम अगर उसको तकरीबन 40% भी कट कर दें, so you able to reduce the cost from around 20,000 to around say 12 to 13,000. So आपने तकरीबन 6 से 8,000 जो है उसको बचा लिया बिजली की वेस्टेज के टर्म में. अब अगर आप इसको देखें कि एक इदारे में अगर 100 एसी यूनिट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और आप एक एसी के पीछे तकरीबन 8,000 बचा रहे हैं, तो 100 के पीछे आप तकरीबन 8 लाख एक महीने में बचा रहे होते हैं. ऐसे है बिल्कुल. और फिर आप इसको अगर वर्कआउट कर रहे हो एनुअली तो यू गेट अनदर नंबर जो कि मिलियंस में जाता है. राइट ऑब्वियसली, बट इस केस में फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली द प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज़ अ कॉस्ट, राइट, और फिर उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शंस का भी एक जो है वो मॉडल है जहाँ पर पहले मैं अपफ्रंट प्रोडक्ट की कॉस्ट पे करूँगा, उसका मंथली मैं पे कर रहूँगा. सो फॉर एग्जांपल फॉर अ स्मॉलर बिल्डिंग लेट्स से 20-30 एसी 40 एसी वाला एक यूनिट है, एक बिजनेस है, उसके लिए डजंट मेक एनी फाइनेंशियल सेंस को उसको 30% सेविंग हो रही है, बट उस सेविंग को करने के लिए दे ऑब्वियसली हैव टू पे अ मंथली कॉस्ट एज वेल, राइट. इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट टू सेल अस समथिंग बट रादर टू गिव एन ऑडियंस के आइडिया कि यार प्रोडक्ट की सेल्फ एफिशिएंसी कितनी है इकोनॉमिकली, तो प्रोडक्ट जब उसमें आपके सर्विस चार्जेस ऐड होते हैं तो फिर उसके बाद कितनी सेव, क्योंकि नेट सेविंग एट द एंड ऑफ द डे तो वही होंगी जो आपके सर्विस एक्सक्लूड करके होंगी. तो हम टिपिकली जो एक ROI है वो आपको तकरीबन 3 से 6 महीने में मिल जाता है हमारे सिस्टम में, समटाइम इवन अर्लियर देन दैट. और कॉस्ट इसकी कितनी है? कॉस्ट इज अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द सेविंग्स दैट यू डूइंग. सो से अगर एवरेज 4 मंथ्स लगाएं तो 4 मंथ्स के बाद अगर आप से 100 एसीज के पीछे तकरीबन अगर 7-8 लाख वेस्ट कर रहे थे मंथली, तो आप मे बी उसका तकरीबन 10% रफली हमें पे कर रहे होंगे और बाकी 90% ऑफ दैट अमाउंट आप स्टिल सेव कर रहे हैं. सो इसको हमने जो प्राइसिंग मॉडल रखा हुआ है वो एक टाइनी अपफ्रंट कॉस्ट है फॉलोड बाय ए मंथली सब्सक्रिप्शन है, और उसकी वजह ये है कि इससे आपको एक अपफ्रंट हाई केपेक्स जो है उस पर नहीं जाना पड़ता. और आप यू स्टार्ट टू यूज अ सिस्टम, यू स्टार्ट टू गेट द सेविंग वैल्यू राइट अवे एंड देन यू जस्ट पेइंग अस अ टाइनी सब्सक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ यू पेइंग अस एन अपफ्रंट कॉस्ट. So I think in that sense it's very user friendly. Right, in terms of economically, yes. Okay, for the audience, थोड़ा सा मैं ना प्रोडक्ट को बता देता हूँ कि अब जब हमने इस प्रोडक्ट को अपने पास अपनी स्पेस में इम्प्लीमेंट किया तो व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे हमने नोटिस किया कि यार इट वाज वेरी एफिशिएंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ को-वर्किंग, हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, दे हैव अ वेरी फिक्स स्केड्यूल एज फारूक साहब सेड कि द प्रोडक्ट हैज़ अ सिस्टम जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट आप लगा देते हैं तो वो एक टाइम पे ऑन हो जाता है, उसके बाद जो है वो XYZ टाइम पे बंद भी हो जाता है. सो व्हाट वी रियली डिड इसके यार मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट है जिसका वर्किंग आवर्स है नॉर्मल 9 to 5. सो हमने AC में स्केड्यूल सेट कर दिया कि यार 8:30 पे वो शुरू हो जाए कूलिंग करना या 8:45 पे, और क्लाइंट के जाने के 15 या 20 मिनट या आधा घंटा बाद वो बंद हो जाए. सो व्हाट इट डज रियली इज़ के क्लाइंट जब आता है तो दे ऑलरेडी हैव
कूल रूम जहाँ पे वो आके बैठता है, तो ऑब्वियसली आपकी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़ती है। ऑन टॉप ऑफ दैट पूरा दिन जो है वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा होता है, तो यू हैव एन आइडिया कि यार कितनी ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी रह रही है। जनरली व्हाट ही सेड इसके टेम्परेचर्स जो है वो 26 के दरमियान में रहने चाहिए। एंड व्हाट यू नोटिस इज कि यार उसमें एक सेपरेट टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है जो आपको रूम का रियल टाइम टेम्परेचर बता रहा होता है। एसी की फंक्शनिंग भी बेसिक सी होती है कि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अप्रोच करता है, उसके बाद जो उसका आउटडोर यूनिट होता है वो कूलिंग बंद कर देता है, राइट। उसके बाद फिर जब एसी को रियलाइज़ होता है कि यार कमरे में गर्मी हो रही है तो वो दोबारा ऑन हो जाता है, राइट। तो होता यह है कि जनरली लोग छोटे कमरों में भी कम टेम्परेचर पे एसी को सेट कर देते हैं, हालांकि एसी पर वो पूरा दिन चलते रहता है और वो जो आइडियल टेम्परेचर है वो कभी रीच नहीं हो रहा था, तो इट रिजल्ट्स इन अ लॉट मोर एनर्जी बिल। सेकेंड वॉज फॉर एग्जाम्पल एज अ को वर्किंग हमारे पास एक सर्विस है दैट इज़ द मीटिंग रूम, राइट। अब मीटिंग रूम में ये है कि पीपल आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट और ओकेजनल बेसिस पे। सो इफ समबडी इज कमिंग इन, वो आते वक्त तो एसी ऑन कर देता है, बट जाते वक्त दे फॉरगेट टू टर्न द एसी ऑफ फॉर सम रीजन, राइट। तो अब वो एसी नेक्स्ट टाइम तक चल रहा है जब तक कोई उसको आके दे के ऑफ नहीं करेगा। It can be half an hour a day, right? But half an hour a day accumulated to 30 days a month, तो it is obviously very costly और energy उसकी जो wastage है वो बहुत ज़्यादा है। तो temperature sensor का I think जो feature था it was very good। आप उसको set कर दें कि यार if somebody walks into the room, turn the AC on, if somebody walks out of the room, after a certain time you turn the AC off। So it was a very efficient feature as well। तो in terms of cost saving, the product itself was very good, we tried it a lot और we did do a lot of savings in terms of the market share। आप एक साल बाद how many clients do you have और how do you think your numbers are going as a business? Right. So it's a relatively new kind of product for businesses. So since we've started, we already have a very fastly growing sales funnel. We have several very good clients which we've onboarded. This include banks that we're working with, other co-working spaces, hospitals, diagnostic labs, some very well-known school chains, and these are also happen to be our core customer segments, because you can understand इन तमाम जगहों पे एयर कंडीशनर्स hundreds की तादाद में मौजूद होते हैं, and the locations are also very dispersed। तो ये तमाम जो फायदे इनकी हमने बात की, तो इन जगहों पे इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, जस्ट टू फर्दर टू व्हाट यू सेइंग, एक और मैं बात का तज़किरा कर दूं कि स्पेशली बरसात के मौसम में हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं नमी की वजह से। अब उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ह्यूमिडिटी कंटेंट ज़्यादा होता है, मोर देन 60%, विच मेक्स अस अनकंफर्टेबल। अब एयर कंडीशनर को उस वक्त इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आप उसको ड्राई मोड पे इस्तेमाल करें, कि जब कंप्रेसर जो है वो कम एनर्जी ड्रॉ करता है और ज़्यादातर वो उसकी जो इवेपोरेटर कॉइल्स हैं उसमें से वो कंडेंस कर रहा होता है ह्यूमिडिटी को। तो ये फीचर आमतौर पे कोई यूज़ नहीं करता जबकि एयर कंडीशनर मौजूद है। सो रीमैच जो है, बिकॉज वो ह्यूमिडिटी को भी सेंस कर रहा होता है, तो इट इज़ एबल टू ऑप्टिमली सेट द एयर कंडीशनर, सो इट वुड स्टार्ट द ड्राई मोड, ताकि आपका एसी एनर्जी एफिशिएंट भी रहे और आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन कर पाएँ। ह्यूमिडिटी को नॉर्मली लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि उसका क्या फंक्शन है आपकी ओवरऑल फीलिंग के अंदर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के एतबार से। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है। राइट, वैसे प्रोडक्ट के सेल्फ इज़ गुड, आपकी इम्प्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी हैं और इट्स एनर्जी एफिशिएंट एज वेल। बट अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे लेंस से देखें, फॉर एग्जांपल विद द इमर्जेंस ऑफ सोलर यूनिट्स इन पाकिस्तान, राइट। अब हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बिजनेस जो है वो सोलर पे अडॉप्ट कर रहा है। जो होम यूनिट्स हैं, डोमेस्टिक यूनिट्स हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो बड़ी एक फास्ट पेस पे सोलर पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं मेरे घर में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा हूँ, राइट, सोलर पे मैं और एसी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आई वुड डेफिनेटली हैव द आइडिया कि यार एसी को मैं एक तरीके से इस्तेमाल करूँ ताकि मेरा बिल जो है वो कम से कम है। बट जब हम इसका यूज़ केस देखते हैं सोलर पे, अगर फॉर एग्जांपल वही घर सोलर पे शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पर तो बिल का एज सच वो जो एक पेन पॉइंट है कि यार बिल ज़्यादा आ जाएगा, तो वो नहीं है। तो आप उसमें क्या एप्लीकेशन समझते हैं अपने प्रोडक्ट की? अब एसी पे शिफ्ट हुआ, सोलर पे शिफ्ट हुआ यूनिट बेशक बिजनेस, और वो 16 पे सारे एसी चलते रहे, तो फ्री की एनर्जी है, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वी आर प्राइमरली टारगेटिंग बिजनेसेस फॉर द रीजन बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बिजनेसेस में जो स्टाफ मैनेजर्स वगैरह एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, दे डोंट हैव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट, एंड सो इट एंड्स अप वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी। हम प्योरली बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं। होम्स के लिए देयर आर अदर स्मार्ट होम सॉल्यूशंस आल्सो दैट कैन बी यूज्ड। अच्छा, अब जो सोलर का पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर आपके बिजनेस में 100 एसी लगे हैं
तो इन तमाम एसीज को सोलर पे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सोलर सेटअप चाहिए जिसका कवर्ड एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा। अक्सर बिजनेसेस के पास एरिया की लिमिटेशन आ जाती है। और फर्स्ट कीजिए, अगर आप पूरा अपनी 100% कैपेसिटी सोलर पे शिफ्ट कर भी जाते हैं तो स्टिल अक्सर शाम को रात को भी यूजेज होगा। उसके लिए आपको एक बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी चाहिए। सो अब अगर आपके पास एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी है और बैटरीज को आप कंज्यूम कर रहे हैं शाम के वक्त, और अब आप एसी भी चला रहे हैं फर्स्ट कीजिए हीटिंग के तौर पे सर्दियों में, तो इट स्टिल बिकम्स अ स्लाइटली ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज यहाँ पर बैटरी आपके पास एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, अनलाइक ग्रिड। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू नोटिस कि आप जब सोलर पे यूज करते हैं अप्लायंसेस तो यू बिकम केयरफुल, यू आर अवेयर कि यार बैटरी इज अ फाइनाइट रिसोर्स। तो इसमें क्या चीज बड़ी जरूरी है कि आपका जो लोड है वो एफिशिएंटली मैनेज होना चाहिए। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रीमैक डज। सो रीमैक वर्क्स वेरी वेल विद सोलर, और यहाँ पर ये आपका लोड इफेक्टिवली मैनेज कर रहा होता है कि अगर एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, वी मेक श्योर कि देयर इज नो वेस्टेज हैपनिंग एंड वी मेक श्योर कि कोई ऐसा एयर कंडीशनर यूज ना हो जो कि एक्चुअली यूज नहीं होना चाहिए। सो जब आप वहां पर अपने लोड को कंजर्व करते हैं तो आप अपनी सोलर और बैटरी एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। अच्छा, इसका जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो जैसे शुरू में आपने जिक्र किया ना माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, तो पाकिस्तान एज यू ऑल अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से वन ऑफ द वर्स्ट हिट है। ऐसे ही तो हमारी जो एयर कंडीशनिंग है ग्लोबली वो 3% ऑफ कार्बन जो कंट्रीब्यूशन है वो एयर कंडीशनर्स जो हैं वो कर रहे होते हैं इस वक्त। अच्छा, इस वक्त तकरीबन 1.5 बिलियन एयर कंडीशनिंग यूनिट्स दुनिया में मौजूद हैं और 2050 तक ये नंबर तकरीबन 5.5 बिलियन पे जा रहा है। सो यू वुड अंडरस्टैंड एंड इफ यू मोस्ट ऑफ यू रिकॉल 90s में इतने एसीज नहीं होते थे, घरों में एक आधा एसी होता था। अब आप देखेंगे हर कमरे में एसी है। तो ओवरऑल एयर कंडीशनर्स की प्रोडक्शन हैव रियली रैम्प्ड अप बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो इससे जो आपका माहौलियाती आलूदगी पे स्ट्रेन है वो और बढ़ रहा है। एसी दो तरीकों से इफेक्ट करते हैं। एक तो ये कि जब आप इंडोर्स को बहुत ओवरकूल करते हैं तो एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो हीट को बाहर पंप करता है, जिससे अर्बन हीटिंग होती है, एक हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट होता है। अर्बन सेंटर्स में लाखों एसी यूनिट्स हैं, बल्कि मिलियंस, और एंड दे आर जस्ट ऑपरेटिंग एज हीटर्स इनटू द आउटर एनवायरनमेंट। तो ये बहुत माहौल के लिए अच्छी चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ग्रिड से एनर्जी कंज्यूम करते हैं, आईपीपी जो कि कोल या डीजल पे चल रहे हैं, जितना आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतना ही आप ग्रिड को स्ट्रेन कर रहे हैं और वहाँ पर फिर कार्बन एमिशन जो है वो भी बढ़ रही होती हैं। तो जब हम एसीज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं तो आप इन दोनों एतबार से माहौल को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के ऑब्वियसली आज के दौर में। अभी रिसेंटली हमने देखा है काफ़ी क्लाउड बर्स्ट के इश्यूज आए। आई थिंक पिछले 20-30 सालों के वर्स्ट तरीन जो है सैलाब आए और पाकिस्तान वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अफेक्टेड। लोगों का मौश ख़राब हुआ, जो पूरी लाइफ थी वो डिस्टर्ब हुई हैं इस चीज़ों से। बट वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारे पास सो बेसिकली यू डेवलप्ड अ वेरी गुड सर्विस, राइट? अब सीन ये है कि बिजनेसेस जो एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इटसेल्फ दे हैव एन आइडिया कि उनका प्रोडक्ट कहाँ पे लैग करता है, राइट? Obviously with the passage of time, day by day, they are trying to make much more efficient air conditions. But यहाँ पे फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेशलाइज सोल्यूशन देता है. Do you think they would be able to provide it? Or for example, if some AC कंपनी डिसाइड्स कि यार हम अपने AC में मोशन सेंसर भी दे देते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल भी दे देते हैं और भी XYZ फीचर्स जो हैं वो हम दे देते हैं, तो डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू कम्पीट विद दिस बिगर मार्केट प्लेयर्स या नहीं? आई थिंक येस, वी विल बी एबल टू. ये तमाम जो फीचर्स आपने मेंशन किए ये हाई एंड एसी ब्रांड्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं. दे आर आल्सो वाईफाई इक्विप्ड. इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ. बट द इशू इज दैट मोस्ट ऑफ दीज एसी यूनिट्स आर डिजाइन्ड फॉर कंज्यूमर यूज. आपके घर में बेडरूम में लाउंज वगैरह में ये यूज होते हैं, तो दे वर्क वेल. एक ऐसा बिजनेस वंस अगेन जहाँ पर 200 एसी यूनिट लगे हैं वहाँ पर, या एक शेयर्ड स्पेस जहाँ पर के एक ऑफिस सेटअप है जहाँ पर के 8 एसी यूनिट लगे हैं, तो वहाँ पर ये वाले एसीज एक होलिस्टिक सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते. What do you mean by holistic solution? So for example, अगर आपके पास 8 स्मार्ट एसीज लगे हुए हैं तो उनकी जो ऐप है इट्स मोर डिजाइन फॉर वन ऑन वन यूसेज. ठीक है, अभी 8 यूसेज अगर यूनिट्स लगे हुए हैं और वहाँ पर ऑफिस जो है वो 30% ऑक्यूपाइड है, 70% अनऑक्यूपाइड. अब किसको ऑन होना चाहिए, किसको ऑफ होना चाहिए, उसके लिए एक काइंड ऑफ म्यूचुअल कोवर्किंग भी रिक्वायर्ड होगी, या एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एसीज भी रिक्वायर्ड होगी. सो ये चीज मिसिंग है. दूसरी बात ये है कि मोस्ट बिजनेसेस में मल्टीपल वेंडर्स के एयर कंडीशनर्स यूज होते हैं जो कि मुख्तलिफ टाइम पे इंडक्ट हो रहे होते हैं. तो इसलिए आपके पास सेम वेंडर के सारे स्मार्ट एयर कंडीशनर्स ऑलमोस्ट नहीं होते. सो देयरफॉर वी फेल्ट दिस गैप
that there was a requirement for a smart enterprise grade solution yeah. जो कि इन जो गैप्स थे इनको एड्रेस कर पाता। एक्टिविटीज के आपस में जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल। सो आवर सिस्टम इज मेक एंड मॉडल एंड वेंडर एग्नोस्टिक, वर्क्स विद ऑल काइंड ऑफ एयर कंडीशनर यूनिट्स जिनके साथ रिमोट होता है। और फिर हमारे प्लेटफॉर्म को पता है कि मुख्तलिफ जो यूनिट्स इस स्पेस में लगे हुए हैं किस डिस्टेंस पे वो कैसे काम कर रहे हैं, और इट इज़ एबल टू कलेक्ट एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन एट क्रिटिकल पॉइंट्स विद इन द इंडोर्स, जो कि एक दूसरा एसी नहीं कर सकता, बिकॉज दूसरे एसी के अंदर जो सेंसर्स हैं वो सिर्फ एसी के ऊपर ही माउंटेड है, जबकि हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। So we are able to sort of therefore act in a more efficient closed loop way which other systems can't. Right. So for the audience, one last thing, from your personal journey, being a startup founder, or as a startup businessman, पहले आप academia में भी काम करते रहे हैं, तो for the audience, one tip you would like to give कि यार अगर कोई startup बनाना चाह रहा है, तो these are some of the things that he should or she should keep in their mind. Yeah, as a business, if these are some of the issues, कोई tip आप देना चाहते हैं for the audience? बिल्कुल, I think there are a lot of tips and you get to see a lot of advice over the web, but I think one thing which is extremely important is कि आप किस स्पेसिफिक आइडिया पे काम कर रहे हैं, और आपका अपना जो बैकग्राउंड है बिकॉज ऑफ सम इंडस्ट्री और व्हाटएवर, आप एजुकेशनिस्ट थे या फार्मास्यूटिकल में थे, व्हाटएवर, आप जिस आइडिया को पुश कर रहे हैं इनटू मार्केट, आप कैसे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे विद योर अर्ली क्लाइंट्स, और आप कैसे एफिशिएंटली एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एट दिस स्टेज अनलेस इट इज वैलिडेटेड by the client usage and they actually tell you okay, yes, it is indeed valuable for them and that this clientele is a large enough market for you to grow. तो जब तक ये चीज़ ना हो पाए तब तक आपको इसमें जंप नहीं करना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात ये भी है कि जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं किस आइडिया पे आपको जाना चाहिए, डोंट बिकम टू इमोशनली अटैच्ड विद वन आइडिया टू क्विकली, यू मस्ट सॉर्ट ऑफ गो थ्रू सेवरल डजन आइडियाज। और आजकल तो जेनरेटिव एआई टूल्स बहुत ज़्यादा आ गए, दे रियली असिस्ट यू इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। So for example, there's one expert that says that if you're brainstorming an idea, just try to come out with say at least 30 to 40 ideas. Try to write those on paper without applying any practicality filters, and then you would start to converge to some good ideas which would normally come later in your thinking process. Don't just start on with the very first idea that you come across. और उसमें definitely आपको देखना चाहिए कि आपकी expertise क्या है, what is really that the world wants, and what kind of skills that you have. और दो स्किल्स को आप हमेशा एक टीम के साथ भी बिल्डअप कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन डूइंग एफिशिएंट एक्सपेरिमेंट्स अर्लियर ऑन व्हेन यू आर रियली रिसोर्स कंस्ट्रेंट, आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्यूट मस्ट। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अब डॉक्टर साहब आपने थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए, यू गिवन अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द सर्विस एंड ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑफ द सोल्यूशन दैट यू गाइस आर प्रोवाइडिंग। आई होप सो कि ऑडियंस ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। मकसद यही है पॉडकास्ट करने का कि यार भी एज अ नेशन हम थोड़ा सा ग्रो करें और नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज और नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज बेस जो है वो अपना बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस।